رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيعنا مولانا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال علي بن أبي طالب عليه الصلاة والسلام: فزت برب الكعبة۔ صلوات پڑھیں اور محمد ذرا صاحب حضرات اور آگے تشریف لے آئیں تاکہ پیچھے والوں کو بھی دفعہ کا سامنا نہ ہو۔ ایک اور صلوات ارشاد فرمائیں۔ حضرات گرامی حضرت سامعین کرام، عزاداران سید الشہداء، ماتم داران حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام، مولا کائنات جناب امیر کائنات خود آپ کو انشاءاللہ اس عظیم عبادت کا حسین اجر عطا فرمائیں گے، اور یقین کامل یہ ہے کہ جناب امیر کائنات سے پہلے مولا حسین کی دکھیاری ماں حضرت فاطمہ زہرا آپ کو اپنے پاس سے اس شبداری کا اس جلوس کا اجر عطا فرمائیں گی۔ خوش نصیب ہیں وہ افراد جو علی سے محبت کرتے ہیں اور علی سے عشق کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو علی کے عشق میں راتوں رات جاگ کر علی کو یاد کرتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی ماؤں نے انہیں محبت علی پر تربیت عطا فرمائی ہے۔ یقیناً یہ ہماری خوش نصیبی ہے کہ ہم اسے یاد کر رہے ہیں جس نے پوری دنیا کو رزق دیا ہے۔ ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے یتیموں کو کبھی بھی یتیمی کا احساس نہیں ہونے دیا۔ ہم اس کا ماتم کرنے کے لیے بیٹھے ہیں، ہم اس پر رونے کے لیے بیٹھے ہیں کہ جس نے کبھی بھی کسی سائل کو خالی ہاتھ واپس نہیں بھیجا۔ اس علی کو یاد کرنے کے لیے بیٹھے ہیں جس نے دشمنوں سے بھی ایسا سلوک کیا کہ ان سے اپنی محبت کا کلمہ پڑھوا لیا۔ جس علی نے پوری دنیا کے ساتھ اتنا کرم کیا، اتنی محبت سے پیش آیا اور اتنا رحم دلی کا اظہار کیا، لیکن ذرا تاریخ سے پوچھئے اسی علی کے ساتھ کیا کیا گیا؟ جس علی کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے تھا، اس علی کے ساتھ ایسا سلوک کیا گیا کہ اسے پوری نماز صبح بھی ادا نہیں کرنے دیا گیا۔ اللہ اکبر، ذرا تصور کریے وہ قیامت کی صبح تھی 19 رمضان کی کہ جب علی نے سجدے میں سر رکھا تو ایسا سجدے سے سر اٹھایا کہ علی کا صدیق سے شگافتہ ہو چکا تھا۔ ایسے موقع پر میں ایک جملہ ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ تاریخ میں دو عجیب و غریب سجدے ملتے ہیں، ایک علی جیسے باپ کا سجدہ ہے، ایک حسین جیسے بیٹے کا سجدہ ہے۔ علی نے جو سجدہ کیا تو مسجد کوفہ میں کیا، اور حسین نے جو سجدہ کیا تو دشت نینوا میدان کربلا میں کیا۔ بس دونوں سجدوں میں بڑا فرق یہ ہے، جب علی نے سجدے میں سر رکھا تو سر کا اٹھانا تو نصیب ہو گیا، مگر جب حسین نے سجدے میں سر رکھا تو سر کا اٹھانا نصیب نہ ہوا۔ شیو کا خنجر چلتا رہا، ایک بہن 70 قدم کے فاصلے سے کھڑی ہو کر اپنے ماجائے
भाई को ज़िबा होता देखती नहीं। आपकी आवाज़ गिरिया बुलंद है, खुदा इन आवाज़ों पे रहमतें नाज़िल फरमाए। रवायत के फिक्रे हैं कि मौला हसन और आपके सारे भाइयों ने अली को सहारा दिया। मैं कुछ शरफ लेके आए, वो ज़हर बुझी तलवार थी जिससे अली के सरे अक़दस से वार किया गया था। मेरे मौला को यूं तो अंदर ही अंदर बहुत तकलीफ थी, अंदर ही अंदर बहुत ज़हर फैला हुआ था, लेकिन अली ने बच्चों के सामने कभी जाहिर नहीं होने दिया कि मुझे कितना दर्द हो रहा है, मुझे कितनी तकलीफ हो रही है। इसलिए कि अली जानते थे अगर मैं रोने जैसी सूरत बनाऊंगा तो मेरे हुसैन को कौन संभालेगा, मेरी ज़ैनब को कौन संभालेगा। संभालती तो माए है ना, लेकिन फातिमा तो पहले ही औरत हो चुकी है। बस अज़ादारो, मौला हसन से ये मंजर न देखा गया कि मेरा बाबा किस तरीके से बर्दाश्त कर रहा होगा। इमाम थे ना, इल्मे गैब जानते थे, सारी तकलीफों को अंदर ही अंदर मौला हसन ने महसूस कर लिया। दौड़ते हुए तबीब के पास गए, तबीब को बुला करके घर लाए। जब वो घर आया तो उसने इमाम के ज़ख्म का मुआयना करना शुरू किया। सुन लीजिए, बहुत गिरिया करेंगे अज़ादारो। तबीब ने इमाम के ज़ख्म का मुआयना करना शुरू कर दिया। रवायत तो यहाँ तक बताती है कि तबीब ने इमाम के जिस्म से एक जगह से एक नस को निकाला और नस को निकालने के बाद इमाम के सर के ज़ख्म के अंदर डाला और उससे पता ये लगाया कि ज़हर कहाँ तक फैला है। जैसे उसने उस नस को निकाला, एक मरतबा सर को झुका लिया। सर को झुकाना था कि मौला हसन घबरा गए, समझ गए कि कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलने वाला है। उसके बाद अली के बेटों ने क्या देखा, उस तबीब ने धीरे धीरे अपने सारे औजारों को समेटना शुरू कर दिया, सारे औजारों को समेटना शुरू कर दिया। हसन आगे बढ़े, आगे बढ़ने के बाद कहते मैंने तुझे इसलिए बुलाया है ताकि तू मेरे बाबा के ज़ख्म का इलाज कर सके, तू अपने औजार को समेटने क्यों लगा। उसने रो के कहा अपने बाबा से कहो जितनी वसीयतें करनी हो जल्द कर ले, इसलिए कि अली एक से दो दिन के मेहमान है। अजर को अल्लाह जज़ाकल्लाह, अली ज़्यादा जिंदा नहीं है। हसन ने कहा कुछ तो बता, कोई तदबीर बता जिससे मेरे बाबा को सुकून मिले। कहता हाँ, एक तदबीर ये है, जितना ज्यादा हो सके अपने बाबा को दूध पिलाओ, जितना ज्यादा हो सके अपने बाबा को दूध पिलाओ। अज़ादारो, अभी ये खबर पूरे कुफे में फैली नहीं थी, इतने में दस्तूर हुआ। मौला हसन की एक कनीज आगे बढ़ी, उसने घर का दरवाजा खोला। अब जो मंजर देखा ना, वो अपनी ज़बान से मौला को न बता पाई। मौला ने कहा बता क्या देखा। बस रो रही है और एक जुमला कह रही है आका खुद जाके देख ले। दरवाजे पे बड़ा अजीब और गरीब मंजर है। तो मौला हसन ने दरवाजा खोला, अल्लाह न करे कोई बेटा अपने बाप की गुर्बत में ये मंजर देखे। जैसे ही दरवाजा खोला, क्या देखा, छोटे छोटे बच्चे हाथों में दूध से भरा कूसा। अरे मौला, हम अपने हिस्से का दो, अपने बाबा हम भूखे प्यासे रहेंगे मगर अपने बाबा को, अपने मौला को अपने हिस्से का दूध दे गए। अली ने सुना, अपनी गुर्बत का मसीहा पढ़ने लगे। आखिरी मंजिल है और वही तमाम हो गई। अपनी गुर्बत का मसीहा मेरा मौला पढ़ता रहा, मेरा मौला मसीहा पढ़ता रहा। एक ऐसा लम्हा भी आया, अली ने अपने बच्चों को सबको करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद वसीयतें करना शुरू करते हैं। इमाम अली की वसीयत कम पढ़ी जाती है, मैं आपके सामने दो तीन वसीयतें पढ़ देता हूँ। मेरे मौला कहते हैं कि बच्चों देखो, पहली वसीयत ये है कि हमेशा जालिम के दुश्मन रहना, मजलूम के मददगार रहना। दूसरी वसीयत ये है कुरान पर अमल करने में कोई तुमसे आगे न जाने पाए। बेटा, तीसरी वसीयत ये है कि अपने हमसायों का ख्याल रखना। एक बड़ी वसीयत पढ़ दो, इंशाअल्लाह आप रोते हुए उठेंगे। उसके बाद अली ने वसीयत की, बेटा हसन सुनो, मेरे कातिल ने मुझे एक ही ज़र्ब लगाई है। इतना इंसाफवा तुम्हारा इमाम है, एक ही ज़र्ब लगाई है तो उसे एक ही ज़र्ब लगाना
सब मेरे करीब आ जाओ, जल्दी से करीब आ जाओ। सारे बच्चे तड़पते हुए घबराते हुए अली के करीब आए कि बाबा क्या कहने जा रहे हैं। 21 रमजान है, सुबह का वक्त है, सबको करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद अपना एक हाथ दिया। अपना हाथ देने के बाद कहते बेटा हसन मेरा हाथ जितनी तेज हो सके पकड़ लो। अल्लाह अकबर। समझ रहे मौला क्या बता रहे हैं? अब्बास जितनी तेज हो सके मेरा हाथ पकड़ लो, हुसैन जितनी तेज हो सके मेरा हाथ पकड़ लो, ज़ैनब बिन कुलसूम जितनी तेज हो सके मेरा हाथ पकड़ लो। जब बच्चों ने, बच्चियों ने, बेटों ने, बेटियों ने अपने बाबा के हाथ पकड़े ना तो हाथ गर्म था। धीरे धीरे हाथ ठंडा होता जा रहा है, धीरे धीरे हाथ ठंडा होता जा रहा है। अली ने आखिरी हिचकी ली, ज़ैनब ने रोके कहा इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। बाबा आप भी हमें ये तो तन्हा छोड़ के चले गए। अब सुनो, अली ने एक वसीयत और की। अली ने कहा था बेटा हसन मेरा जनाजा आगे से न उठाना। अल्लाह अकबर, क्या शान है मेरे मौला की। रोने का मतलब है बेटा मेरा जनाजा आगे से उठाने की जरूरत नहीं है, मेरा जनाजा पीछे से उठाना। कहा बाबा आपका जनाजा आगे से कौन उठाएगा? कहा वो मखलूक नजर नहीं आएगी लेकिन मेरा जनाजा आगे से खुद ब खुद उठ जाएगा। और यही हुआ, पीछे से मौला ने जनाजा उठाया, आगे से जनाजा खुद ब खुद उठा। और उसके बाद नजर से अशरफ में ले गए, मौला की कब्र को सिपुर्द लहर कर दिया। बहुत रोते रहे हसनैन, बहुत तड़पते रहे हसनैन, बहुत बिलखते रहे हसनैन, रोते हुए वापस आ रहे थे। इतने में किसी गिरे हुए घर से, किसी खराबे से सिसकने की आवाज महसूस हुई, कराहने की आवाज महसूस हुई। फातिह खैबर के बेटे थे ना, एक मुनिस बाप के बेटे थे ना, रहा नहीं गया, कौन तड़प रहा है इस वक्त, कौन सिसक रहा है? उसी आवाज की तरफ चले, आगे बढ़ते जा रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब उस खराबे में पहुंचे तो क्या मंजर देखा? एक ज़ईफ और नागवा शख्स है जो अपनी आंख से मजबूर है, नाबीना हो चुका है। उसका हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ने के बाद कहा ऐ ज़ईफ और नागवा शख्स ये बता तू आखिर इतना ज्यादा गिरिया क्यों कर रहा है? तू इतना ज्यादा गिरिया क्यों कर रहा है और तू किसे याद करके रो रहा है? वो नागवा शख्स कहता है मुझे नहीं मालूम वो कौन था और कैसा था, लेकिन हाँ एक मेरा मोनिस और मददगार जरूर था जो अपने हाथों से मुझे खाना खिलाता था, अपने हाथों से मुझे पानी पिलाता था। आज 3 दिन हो गए वो मेरा मोनिस मुझसे मुलाकात करने के लिए नहीं आया। मौला से ने पूछा बता उसने कभी तुम अपना नाम बताया? तूने कभी नाम पूछा? कहता मौला कई दफा नाम पूछा और जब जब नाम पूछा उसने बस ये कहा क्या करोगे मेरा नाम जानकर? बस इतना समझ लो फकीरुन जालसा फकीरा, मिस्कीनुन जालसा मिस्कीना। एक मिस्कीन है जो मिस्कीन के पास बैठा है। तुम्हारा मौला कह रहा है फकीर है जो फकीर के पास बैठा है। ना कोई और निशानी बता, ना कुछ को नहीं बता सकता, लेकिन इतना जानता हूँ जैसे तुम बोलते हो वैसे ही वो भी बोलता था। जो तुम्हारा रह जाए वही उसका रह जाता। हसन ने तमाचे मारे मुंह पे, कोई और नहीं, मेरा बाबा अली मुर्तज़ा। अली अंदर लगे जल्दी से अली की लहर पे पहुंचो। सारा लेके लहर पे आए, फरियाद किया परवरदिगार जब मेरा आपा न रहा मेरी जिंदगी का क्या फायदा? वहीं पे तड़पता दुनिया। अल्लाह